Good afternoon, students. Very good afternoon. बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. बच्चा बैठो पहले एक जगह पे, है ना? बहुत ठंड है ना? दिख रहा है. अलीशा, बहुत ठंडी है बेटा. बहुत यस ठंडी. मैम. यस मैम, सही ना? हाँ, आज बहुत ठंडी है. आजिया सिंह को, हाँ देखो आजिया सिंह मुझे दिख रही है, अदरवाइज वो कैमरा के उल्टा बैठती है जिधर लाइट ही नहीं पड़ जाता. और आई कैन नॉट सी जिया सिंह. नाउ सी. अच्छा, जिया सिंह और मैं आज सेम पिंच हूँ. ओहो, ऐसा है क्या? अनम्यूट करो जिया. गरिमा अनम्यूट करो. यस मैम. गरिमा अनम्यूट करो. आज आपकी आवाज आ रही है? देखो तो सही, बिकॉज आपको रोज वो प्रॉब्लम होता है, मैम आवाज नहीं आ रही. आज भी नहीं आ रही है. अनम्यूट योरसेल्फ गरिमा. यस मैम, आ रही है. आ रही है ना? क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से आपके प्रॉब्लम हो रहे थे, मैम मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही. संस्कृति 2-3 दिन से कहाँ थी बेबे यू? संस्कृति यादव जी, हाँ म्यूट करो. संस्कृति यादव कहाँ थी 2-3 दिन से? आप कल थे क्लास में? कल मैंने आपको देखा नहीं. चलो विल स्टार्ट द क्लास. बहुत सारी गप्पे हो गई हम लोग की, एक दूसरे की खैरियत भी पूछ लिया आप लोगों ने, है ना? अब लोग पढ़े. चलो, so today we'll start with the revision of lesson 1. okay, unmute करो. unmute yourself फटाफट. जिनको मैंने unmute रखा है वो फटाफट unmute हो जाए. ओके. जिया वीडियो नहीं ऑफ करेगा बेटा. Okay, so today we'll start with the revision of lesson 1. हम लोग 10 तक revision कर चुके. We have done till lesson 10. Last lesson was lesson 10, water pollution. We have finished, and even we have done the revision also. So today we'll start with lesson 1, unit 1, which is the very first lesson of your book. है ना संस्कृति? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. संस्कृति मुझे ये बता दो कि what was there in lesson 1? Lesson 1 was all about my body. तो my body में हमें क्या क्या पढ़ना था उसमें? We had to study what? यस मैम. क्या क्या पढ़ा था उस लेसन में हमने? जी ऐसे बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत गुड. अब छोड़ दो, लीव इट. हाँ, पढ़ने कम बैठी, स्टाइल ज्यादा दे रही, कभी अपना कैप सही करती, कभी कुछ करती, है ना जिया? चलो संस्कृति मुझे बता दो जल्दी से. संस्कृति. मैम हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे. वेरी गुड. और क्या पढ़े थे? सेट्स ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, ओके. केयर ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. और हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड. ओके. यानी दिस लेसन वाज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. We had studied from mouth, it starts. तो mouth के बारे में पढ़ा था, teeth के बारे में पढ़ा था, different types of teeth, their function, tongue, how to take care of these teeth. Then we studied about the different organs of digestive system. और उसके बाद देखा था हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए to keep ourselves healthy, right? Good. चलो, तो इस लेसन के क्वेश्चंस कैसे थे? शिवांश अनम्यूट करो. What is the other name for flat teeth? And first tell me how many types of teeth are there in your mouth? How many types? Yes, ma'am. How many types of teeth are there in your mouth? Ma'am, 3. Bolo. Ma'am, flat teeth. Okay. Broad and grooved teeth. Pointed teeth. अच्छा, तो हमें we must
say these types of teeth in sequence, है ना? From front to Yes, back. ma'am. So front teeth, pointed teeth, molars and Flat teeth. broad and groove teeth. And if we tell about the specific name for it, if we go for the specific name for those teeth, it will be incisors, canines, molars, and premolars. Premolars and molars, isn't it? Debola? Yes, ma'am. The other word for flat teeth is incisors, pointed teeth, canines, molars and premolars are grooved and broad and grooved teeth. Now, tell me, Anshuman, what is the function of these teeth? Unmute yourself. What is the function of these teeth? Okay, ma'am. First of all, flat teeth is called inferior, in Incisors, 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 incisors also, and they help us to bite or cut our food. very good. And pointed teeth, which are also known as canines, they help Canines. us to tear our foods. Canine, canine. It is not canine, And it is canine. okay, and then broad and grooved teeth that are known as premolars and molars, they help us to chew the food properly. Okay, very good. You have given the right answer, but not doing the right thing. You're not in your school uniform. May I know that? In first period, if it was the first period, I could have understood. Now, okay, it is first period, 9 o'clock, might be very cold. That is why you have not changed your dress. But it is 1 o'clock, dear. Yeah. 1 baj raha hai, and you're not in school uniform. Ma'am, because my school uniform I have weared, and then I like my mom has put where I don't know, so I have not wear. But you should be prepared for with your school uniform. Yeah, if it was a school day, then what would you would have done? You would have come with your school house uniform. No, no. No, ma'am. Make it a practice. No, Make it a practice. ma'am, I will take care of it. Very good. You must take care of it. Make it a practice to be in the school uniform when you are there, taking the getting into the class, because it gives Yeah. you a feeling of being a student. है ना? You feel confident. Yes, Confident ma'am. आता है, अपने आप में Like we are in school, we are Yes. studying. Yes, you are studying. The teacher is teaching you and you are studying. It gives you a feeling of that. Okay, next, Arya Sinha, unmute yourself. Arya, unmute Yes, ma'am. yourself. Now, he said, Yes, ma'am. Anshuman said that we have got 3 types of teeth, flat teeth, pointed teeth, and broad and grooved teeth. These teeth are how many numbers? Tell me. Flat teeth are how many numbers? Bolu? Flat teeth are how many numbers? Ma'am, 4. They are? Ma'am, 4. They are 8 in numbers, bacha. They are 8 in numbers. 4 on the upper jaw and 4 on the lower jaw. They are 8 in numbers. 8 hai. Incisors, the flat teeth, they are 8 in numbers. 4 on the upper jaw and 4 in the lower jaw. What about the pointed teeth canines? Arya? What about canines? Canines? They are 4 in all. 2 on the upper jaw and 2 in the lower jaw. Kanak, unmute yourself. How many broad and grooved teeth we are having? Kanak, can you hear me? Alisha Anand, tell me. Anisha, tell me. See, रुक गया ये सारा फिर से वापस. Boys and girls, we have got 20 broad and grooved teeth, 8 premolars and 12 molars. 4 in the upper, 4 in the lower premolars, 6 in the upper, 6 in the lower molars. Okay, so this was all about teeth. ये दांत के बारे में बात थी, है ना? कि we have got 4 sets of. Not coming. I got muted, got disconnected. Okay, so Okay.
Okay, Anshuman बात नहीं करेंगे. So we have got 20 in numbers, molars and premolars. We have got 8 premolars, 4 on the upper, 4 on the lower jaw, and 12 molars, 6 on the upper jaw and 6 on the lower jaw. Okay. Now, do you think you must take care of your teeth? Garima Singh Girwal, how do you take care of your teeth? Tell me at least 4 points by which you can take care of your teeth. Ma'am, brush your teeth twice a day. Very good. Morning and at night. You must brush your teeth twice a day. 2 दिन, एक दिन में 2 बार. In the morning and at night. Next. Rinse or wash your mouth after every meal. Good. Visit a dentist for regular checkup of your teeth. Okay. हमें डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही क्या क्यों पड़ेगी? अगर हम क्या करेंगे? अगर हम अवॉइड करेंगे स्वीट फूड, अगर हम स्वीट चीज को खाने के अवॉइड करेंगे, वो तो हम नहीं कर सकते ना. वी कैन नॉट अवॉइड. बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ किड. अच्छा, स्कूल बुक में तो लिख दिया है अवॉइड ईटिंग स्वीट थिंग्स. फिर आपके सामने चॉकलेट हो गरिमा, तो क्या अवॉइड कर पाएंगे? बर्थडेज होती है क्लास में, तो क्या होता है? वी जस्ट वेट. अरे मैम उसका बर्थडे है, क्यों? चॉकलेट देगा. और चॉकलेट मिलने के बाद जस्ट वेट ही नहीं होता. कितनी जल्दी इसको जल्दी खोलो और मुंह में डालो. Ma'am, I don't eat much chocolate. I don't like. हाँ, very good. It's good that you don't eat much chocolate. But chocolate को अवॉइड तो नहीं कर सकते ना. हाँ, एकदम सही बात है. I do agree with you, Arya. Yes, ma'am. Chocolate We can't avoid. We can't avoid. We can't मतलब resist आ सकते. Avoid नहीं कह सकते. We can't resist. हाथ में चॉकलेट हो और हम वेट करते रहे कब मैम घूमे, मैम बाहर जाए तो खोल के खाए. मैम जल्दी निकलती, पीरियड खत्म होता है, हमारा क्लास खत्म होता है. Just wait for the bell to ring. और जैसे कोई टीचर गया, जल्दी से रैपर होते हम लोग मुंह में डाल लेते. Good, you must have it. आप खा सकते हो, no problem. लेकिन खाने के बाद you must rinse your mouth, ताकि कहीं पे वो जम के बैठ नहीं जाए, because that will lead to tooth decay. है कि नहीं? इसीलिए कहा गया था, सेकंड पॉइंट गरिमा ने कहा है कि you just have a, either you rinse your mouth with water so that there is nothing left in your mouth. आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कैसे होता है? लंच ब्रेक के बाद हम लंच ब्रेक के बाद हम जाते हैं वॉशरूम के सामने और वहां जाके सिर्फ हाथ धोते हैं. We don't bother to rinse your mouth. हम लोग अपना मुंह धोने का तो बॉदर भी नहीं करते. गए जाके हाथ धोया, ऐसे करते हुए, हाथ से पानी छिटकते हुए we get back to our class. है ना? सही है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ होता है. एंड जल्दी क्योंकि we cannot miss that time frame. कुछ थोड़ा सा टाइम जो मुझे मिला है, हमें इसके साथ थोड़ी बात करना है, उसके साथ थोड़ी शैतानी करनी है, तो we forget to take care of our teeth. तो बच्चा लोग, just take care of it. You have to wash your mouth, rinse your mouth after every meal. हर खाने के बाद you must take care of it. है ना? रात में खाने के बाद कितने लोग ब्रश करते हैं? हाथ उठाओ तो जरा सा. Let me see on screen. चलो मैं गैलरी व्यू में जाती हूँ, देखती हूँ कितने लोग ब्रश करते हैं. नाम के वहां से करते हो, ये करते हो? ओके, वेरी सो मेनी. हाँ जी, वेरी गुड. और कुछ लोग सिर्फ, संस्कृति का हाथ अभी तक नहीं उठा है. ओके संस्कृति, तेरा हाथ तो रेज नहीं हुआ है. जरा स्क्रीन पे आओ, वापस अनम्यूट कर. अभी हाथ उठा रहे हो? हाँ संस्कृति, अनम्यूट करो जल्दी से. अनम्यूट करो. जल्दी. तो वॉशिंग, हाँ नहीं करती ना? Do you wash your teeth? Brush your teeth daily twice? बोलो. मैम बहुत ठंडी है, दो बार ब्रश करना, वेरी हॉरिबल. हम नहीं कर सकते. करते हो? सच्ची बताना. No, ma'am. देखो, इसको कहते हैं ऑनेस्ट कन्फेशन.
दिस इज कॉल्ड ऑनेस्ट कन्फेशन। उसने ऑनेस्टली कह दिया कि नहीं मैं 2 बार नहीं करती। सुबह में नहीं करते हो, सुबह में नहीं करते हो, मैम मॉर्निंग में भी करते ब्रश नहीं हैं, करते। मैम करते हैं। मुझे लगा बोलोगे मैम मैं तो जंगल की शेर हूँ, शेर लोग ब्रश थोड़ी करते हैं। किसी जानवर को देखा है ब्रश करते हुए? हम ही इतना देखभाल करते हैं अपने दांतों का, नो मैम। नहीं करता ना। हाँ, जंगल के शेर लोग दांत ब्रश नहीं करते, बट बच्चे लोग वो लोग बीमार भी पड़ते हैं, तो उनको देखने वाले कोई नहीं होते, और उनके दांत हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। हमें अपना देखभाल करना पड़ता है। ओके, सो यू मस्ट, क्योंकि दीज आप ये चलो जोक्स अपार्ट, सारे मजाक एक तरफ, सेकंड आप ध्यान रखिए, यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, बिकॉज हम जो भी खाते हैं हमारे दांत के किसी भी कोने में वो फंस सकता है ना, एंड दैट कैन लीड टू टूथ डिके। हमारे अगर चेहरे में हमारे दांत क्या करता है पता है आपको? ये टीथ जो हमारा जॉ है आपके फेस को एक फ्रेम देता है। जिनके दांत नहीं होते उनका देखा है गरिमा, घर में अगर कोई दादाजी या दादी माँ जिनके दांत नहीं है उनके कैसे स्किन हो जाते हैं, घुस जाते हैं अंदर, डिम्पल डिम्पल पड़ते हैं। तो ये हमारे फेस को एक शेप देता है। टूथ गिव द शेप टू आवर फेस। हम खूबसूरत दिखते हैं, सामने के दांत नहीं हो तो हम छुपा छुपा के चलते हैं, है ना, चलते हैं ना। सब ये पूछते हैं दांत कहाँ गया, चूहा ले गया, पूछते हैं कि नहीं पूछते? सच्ची बता दो। और अगर मान लो सामने के 4 दांतों में कीड़े लगे हो, सामने के 4 दांतों में अगर इफ यू हैव गॉट दिस कीड़े लग जाते हैं तो हम खुल के हंस भी नहीं सकते, हम दांत को छुपाते हैं लाइक दिस, वी डू लाइक दिस ना। अगले को पता चल जाएगा कि हमारा दांत कितनी अच्छी क्वालिटी का है। यस मैम। यस मैम, देखो गरिमा का कितना लवली स्माइल एंड शी नेवर हाइड्स इट। हाथ नहीं करते हम लोग ऐसे पीछे। दिव्यति आल्सो शी इज हैविंग सच अ ब्यूटीफुल स्माइल। कितना खुल के हम हंस सकते हैं, एवरीबॉडी विल लव इट। अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल टीथ यू आर हैविंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल यू आर हैविंग। और ये दांत एक ऐसी चीज है ना, आपके खाने के साथ ही जर्म्स को एंटर करने का दे सकती है ना, आपकी बॉडी के अंदर। तो यू हैव टू कीप इट फ्रेश, you have to keep it strong, you have to keep it germ free. So after every meal you must rinse your mouth, you must wash your mouth. You after every early morning when you get up, आपको हमेशा कुछ भी खाने के पहले, सुबह उठते ही उठ के पहला काम ये होता है, you must go for the morning care. Morning care मतलब you must go to washroom, brush your teeth properly. अब teeth brushing भी बहुत खराब तरह से लोग करते हैं, या तेरा ही दांत है, आराम से हो गया। नो, यू मस्ट डू इट प्रॉपर्ली। उसे समय दो, प्रॉपर्ली केयर के उसके ब्रश करने। ओके, सो दिस वाज आल्सो अबाउट केयर ऑफ टीथ। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या करेंगे कि हमारे दांत सही है? हम हेल्दी फूड खाएं। गरिमा ने अच्छी बातें नहीं बताई, गरिमा ने अच्छी बातें नहीं बताई, शॉर्टकट वाली बातें बता दी। ब्रश योर टीथ और गो टू डेंटिस्ट। हम डेंटिस्ट के पास क्यों जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? अगर हमने अपने दांतों को अच्छे से देखभाल किया होगा, डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे? विल ईट फ्रूट्स, विल ईट एप्पल, गुआवा। हम एप्पल खाएंगे, गुआवा खाएंगे, जो हमारे दांतों की एक्सरसाइज भी होगा। हमारे दांत जो है इससे स्ट्रॉन्ग भी होंगे, बिकॉज एक्सरसाइज। कैरेट, गाजर, है ना। अभी तो लोग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई से 2 ले, वॉश करें एंड देन यू हैव इट। आप जितने अच्छे से इसको चबाएंगे ना, दैट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर योर जॉस, फॉर योर टीथ। और क्या है, आपकी ऐसे फूड खाएं, आपने पढ़ा है फूड में, यू हैव टू टेक सच अ फूड व्हिच इज रिच इन कैल्शियम। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस में रिच होंगे। मुझे बता दो, कोई भी बता दो कि द फूड व्हिच इज रिच इन कैल्शियम कौन है? क्या इज, डू यू नो एनी फूड व्हिच इज रिच इन कैल्शियम?
Do you know any food? Anshuman ने हाथ उठाया है, on screen भी उठा रहे हैं, very good. Which is rich in calcium. Products. All the food product, very good. Milk products, जितने भी milk products हैं, they are rich in calcium. Pulses, rich in calcium. है ना? With green vegetables, rich in calcium. तो अगर आप इन खानों को खाएंगे तो आपके दांत मजबूत होंगे. आपको पढ़ाया गया है in the lesson of food that the minerals like calcium, phosphorus, they help to keep your teeth strong. आपके दांत को strong रखता है, आपके bones को strong रखता है. For that, you must take good amount of milk. लेकिन तो मैम क्या बात करी मैम, मिल्क भी कोई पीने की चीज है? ची 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 ची, हम तो मिल्क पीते ही नहीं है. कितने बच्चे मिल्क नहीं पीते जिनको अच्छा नहीं लगता? हाँ, पीटी मीटिंग में बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेन होता है, मैम ये ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, ये मिल्क नहीं लेते. तो बच्चा लोग मेक इट अ प्रैक्टिस दैट आपके हर दिन के खाने में, फुल डे मील में आपका मिल्क जरूर होना चाहिए. यू मस्ट हैव मिल्क इन योर डेली मील. आपके मील चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग ब्रेकफास्ट हो, हम ब्रंच जो करते हैं शाम का वो हो या मॉर्निंग के बाद हो, यू मस्ट हैव मिल्क बिकॉज मिल्क इज द ओनली सोर्स ऑफ, बच्चों के लिए तो वो सबसे बड़ा सोर्स है फॉर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस which makes your bones stronger and which makes your teeth good. तो हमें ऐसे खाने खाने हैं for making the teeth stronger, taking care of the teeth. You must eat food which is rich in calcium. Eggs लेने हैं, milk products लेने हैं for the strong teeth. उसके देखो यहाँ brushing of teeth का बहुत अच्छा सिस्टम दिखाया है. देखो अगर आपके पास बुक है तो देखें, अभी मैंने बताया ना आपको जनरली क्या करते हैं, ब्रश किया कैसे कर लिया. No, the correct way of brushing your teeth is going up, going down, up and down. Kshitish, अभी धो रहे हो क्या, ब्रश कर रहे हो क्या? Are you brushing your teeth right now? No ना. मुझे लगा कि मैम ने कहा है तो तुरंत दौड़ पड़े हैं, मैम चला मैं ब्रश लाने और brushing your teeth. नहीं ना. Okay, so every corner of your teeth should be brushed. हर एक कॉर्नर को ब्रश करना चाहिए ताकि कहीं भी, that is why you must take a brush with a good bristle. अच्छे ब्रिसल वाले ब्रश होने चाहिए. ब्रिसल मतलब जो उनके रेशे हैं, बिकॉज दिस विल क्लियर और क्लीन द कंप्लीट टीथ. ओके, यहाँ पे डू यू नो एक वर्ड था कि if sugar and bacteria are left on the teeth for long, they can cause tooth decay. अभी मैंने आपको बताया है, अगर हमने खाने को कुछ भी खाने के बाद, पर if we don't rinse our mouth properly, अगर हमने मुंह को प्रॉपर्ली नहीं धोना है, अगर नहीं धोएंगे, it will lead to tooth decay. दांत सड़ता कैसे है? दांत सड़ता कैसे है? क्यों है? Because हम ब्रश प्रॉपर्ली नहीं करते. जो खाना है, whatever food we are eating, if it is left on the teeth for a long time, Vishal, unmute करो. If it is left on the teeth for a long time, it generates bacteria into it. और ये बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे दांत को, एनामल को सड़ा देता है. आपके बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट है आपके टीथ का आउटर कवरिंग. आपके टीथ का आउटर कवरिंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर बॉडी एंड वी कॉल इट, who will tell me what do we call this? विशाल को मैंने अनम्यूट किया था इसलिए. What do we call that the hardest substance present on the upper outer side of teeth? क्या है उसका नाम? विशाल you are unmuted, मुझे बताओ. Ma'am, The outer covering of teeth, which is the hardest substance in our body, is? Do you know it? Do you know the answer? मैम आपका आवाज बेटा आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की ना. आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं. स्मृति झा अनम्यूट करो. What is the hardest substance known in the human body? It is the outer covering on the teeth. What do we call it? enamel. Yeah, we call it enamel. It is the white outer covering of the teeth, which is the hardest substance in our body. It is teeth. अब इसके बाद आते टंग की बात. टंग दूसरा क्या पढ़ा था? टंग. ये it is what? Tongue is what? It is the between teeth and movable part inside our body, and it gives you what? What are the use of tongue?
Who will tell me the use of tongue? Again, so many hands, so many hands, so many hands. Good, good, good. Purnima bol, what is the use of tongue? Tongue is used to tasting, speaking, and speaking. Bolo? Ma'am, tongue is used to tasting and speaking. Tasting and speaking. Okay. And speaking. Yes, we cannot speak a single word without tongue. Even tongue ही नहीं बोल सकते. अगर tongue नहीं होगा, Anshuman is giving a hard try to it. Tongue बोल के दिखाओ बिना tongue को use किए. बता दो मुझे, दिखाओ कोई बता दो मुझे. You speak of the word tongue. हाँ, everybody is using बिना tongue. They are not able to. Yes, हमारे ट शब्द, ट ठ आप हिंदी में पढ़ते हैं ट वर्ग, ट ठ ड सारे में हम tongue use करेंगे. ल हम नहीं बोल सकते इन वर्ड्स, इन लेटर्स को, इन अक्षरों को हम नहीं बोल सकते. Anshuman is giving a hard try. वो बिना जीभ को हिलाए he is trying to say something. हाँ मैम बोलो बोलो बोलो, मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ. बोल ही लो अब तो, बोलो बोलो क्या बोलो. Ma'am, I can say without That- using तो tongue. अच्छा मुझे ये बता दो अंशुमन, सिर्फ क क बोलते जाओगे तो मम्मी समझ जाएगी तुम्हें खाना चाहिए. बता दो, तुम्हें आंसर लिखना है तो अंशुमन you will only write क. Every answer is having the, every question has got the same answer क. ठीक है ना? तो टंग बोल के दिखाओ ना मुझे, मैं तो बोल रही हूँ. Tell tongue without using your tongue. बोल. Give a try. For that, ma'am, first I have to cut my tongue. It means you cannot speak a word. ट वर्ग जो है हमें इसको हेल्प करता है, हमारा टंग हमें स्पीकिंग में भी हेल्प करता है. ओके चल, जोक सपाट बहुत सारी मजाक की बातें हो गई आज ना. चल आगे बढ़े. Then comes saliva. हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है saliva, which is there in the form of juicy substance which is secreted by the salivary glands. Now you tell me how many pairs of salivary glands are there about? कौन बताएगा? अनुषा बोलो. अनुष्का बोलो. How many pairs of salivary glands we're having about? ma'am. कितने pairs हैं हमारे salivary glands के? Ma'am, 1, 2. पहले 1 बोला फिर 2 बोला. श्योर हो कितना है? Ma'am, 1. ऑप्शन दिया मैंने ना, सॉरी दोनों गलत है. You have got 3 pairs of salivary glands. आपने लर्न ही नहीं किया है. We have got 3 pairs of salivary glands in our mouth which secretes saliva. आपके माउथ को वाटरी रखता है. आप जब कोई खाना खाते हैं, अपने घर में मम्मी को देखा है ना, मम्मी अगर मिक्सी में सब कोई भी मसाला पीसती है तो she puts water into it so that it becomes a paste. वो easily grind हो जाए. करती है ना? देखा है? देखा है? Yes. तो Yes, हमारे ma'am. खाने को, ड्राई खाने को हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर सकता. You cannot be swallowed. हम swallow नहीं कर सकते. तो क्या होता है, हमारे माउथ से, हमारे salivary gland से there is this continuous secretion of saliva. ये 3 pairs of salivary glands secrete करते हैं watery liquid called saliva which mixes with the food. वो खाने को mix करके खाने को soft बना देते हैं so that you can swallow it properly, ताकि उसको swallow कर सके. Now I saw Utkarsh. Utkarsh, unmute yourself. Are you okay today? आज सही हो? Yes, ma'am. आज आपकी आवाज तो आ रही है मुझे. कल आप बीमार थे थोड़े से ना? चलो क्या हो गया? सारा ठंड है. बहुत ठंड है, बाप रे बाप. सही में बहुत ही ठंड है, हमको भी ठंड लग रही है. चलो वापस. अब खाना चबा लिया हमने, खाने को सॉफ्ट भी बना लिया, खाना गले तक पहुंच गया. हम इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? उत्कर्ष, खाना गले से. वेरी गुड. फूड पाइप. खाने को हमने चबा लिया, हमारे दांत का काम हो गया, हमारे जीभ का काम हो गया, सलाइवरी ग्लैंड का काम हो गया. खाना ओसोफेगस से कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? सरस्वती कहाँ आया खाना? स्टमक में आ गया. अब इस खाने का क्या होगा? Who will continue? यहां से कौन मुझे पकड़ेगा? अब इस खाने का क्या होगा?
What will happen? Anant Rai. Now you tell me what will happen to the food. From the mouth, the food goes into the food pipe, under the stomach. The stomach is a muscular bag-like organic in which food can be stored for few hours. वाह कितना अच्छा रीडिंग डाल रहे हो अनंत, वेरी गुड। मैंने रीडिंग देने के लिए बोला था ना, मैं तो सिर्फ पूछा तुमसे कि स्टमक में खाने का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द फूड। आदित्य अनम्यूट करो, वेरी बैड। आदित्य अनम्यूट करो, बताओ अब क्या आने का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द फूड जब ये स्टमक में चला जाएगा उसके बाद। It will be get digested. How would it get digested? Who will help it? It will go in small intestine. अरे पहले स्टमक की तो कहानी कंप्लीट करो, स्टमक से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन भेज रहे हो। चलो शिवांश अनम्यूट करो, बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द फूड व्हिच हैज गॉन इनटू द स्टमक। स्टमक में चला गया, अब खाने का क्या होगा, बोलो शिवांश। Yes, ma'am. बोलो The food is partially digested. हाउ कम, कैसे हो गया, हाउ कम द फूड गॉट पार्शियली डाइजेस्टेड। Ma'am, because it mixes the digestive juices. Very good. Yes. There the food stays for 4 to 5 hours. अब खाना जब पेट में पहुंच गया है स्टमक में, there it will stay for 4 to 5 hours. यहाँ पे स्टमक के वॉल से, स्टमक हमने बताया ना कितना अच्छा रीडिंग डाला आनंद ने, तो उसमें स्टमक का जो पाउच है, जो मस्कुलर पाउच है, उसके वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, उस खाने को वहां पार्शियली डाइजेशन हो जाएगा। खाना वहां पे, पूर्णिमा तुम म्यूट करो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है, यहाँ पे खाना पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद द फूड विल पास ऑन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, आपने अभी पढ़ा है, अभी तक आप नहीं पढ़े थे ना, तो आपने क्लास ज्वाइन किया क्लास 1 में कि ये क्या करता है। अभी आपको पता है वी हैव गॉट 5 न्यूट्रिएंट्स, हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में, या द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, सही बोला ना। सो दे विल गेट अब्सॉर्ब, वहां पे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है खाने में, उनकी अब्सॉर्प्शन हो जाएगी। अब खाने से सब कुछ चला गया है, खाने किस पर्पस से हमने खाया वो सारा अब्सॉर्ब हो गया। अब क्या होगा, द अनडाइजेस्टेड फूड विल पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन। खाना पूरा ट्रैवल कर रहा है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे खाने का क्या होगा, प्रांजल बोलो, अब खाने का क्या होगा। अब तो खाने के न्यूट्रिएंट भी अब्सॉर्ब हो गए हमारी बॉडी के द्वारा। नाउ व्हाट विल हैपन टू इट। Ma'am, the food suck water from the food. द लार्ज इंटेस्टाइन, अब तो खाना फूड नहीं है, अब तो फूड है ही नहीं, फूड के जितने भी चीजें वो तो एब्सॉर्ब हो गए। द अनडाइजेस्टेड फूड अब डाइजेस्ट नहीं हो सकते, विल पास टू लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे इससे जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है उससे वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ का मेन फंक्शन क्या है, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एब्सॉर्ब हो जाएगा एंड देन द रेस्ट ऑफ द फूड विल बी सेंट टू द रेक्टम एंड फ्रॉम देयर इट विल गेट आउट ऑफ द बॉडी। Okay, so this is how the digestion works. सही है? चलो मुझे इसका पूरा सीक्वेंस बताओ फ्रॉम माउथ टिल लास्ट पोर्शन। चलो कौन बताएगा, वैष्णवी यादव, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सीक्वेंस में बताओ। वैष्णवी बताओ इन सीक्वेंस। Yes, ma'am. इन सीक्वेंस, इन द कंप्लीट सीक्वेंस। देखो मेरा, हम लोग का लास्ट मिनट चल रहा है, किसी भी समय क्लास बंद होगा, फिर मत बताना कि मैम ने हमें नहीं बताया। Before that, let me give you the homework for today. For tomorrow, your homework shall be lesson 1 only. हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, A B C D E F E, यानी fill in the blanks, match the following, MCQ and question answers. ठीक है? तो कल हमारा आनंदी भी आज है, ओके मैंने देखा नहीं था, ठीक है? Your homework for today shall be lesson 1, ठीक है?
क्वेश्चन आंसर्स A B C D E. ओके, चलो बोलो।